Good morning, dear students. How are you? I hope that all of you are fine at your homes. Okay, stay home or keep safe. Okay, dears. Now we have discussed the Thomson model and Rutherford model in the last two lectures. Thomson model is the first model of the atomic structure, and then Rutherford model, alpha particle bombardment. Okay, so Thomson model is the first model, but have a lot of drawbacks, like it does not explain the nucleus and the electronic configuration and electronic revolvement. Okay, dears. Rutherford model also have the drawbacks. Okay, dears. The drawbacks of the Rutherford are as the Rutherford model cannot explain the stability of a atom. Stable क्यों होता है molecule? Rutherford says that the electron revolving around the nucleus, when the electron revolving around the nucleus, energy is emitting, energy is releasing during the motion. कोई भी थिंग्स है अगर मोशन कर रही तो वो एनर्जी को लूज़ करेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो एनर्जी को सारी उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी और वो थक के बैठ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम कान नॉट बी प्रोड्यूस, कान डिस्ट्रॉय। ओके, जस्ट मास की तरह है। Okay, so it cannot explain the stability of atom. Second is the it does not explain the electronic structure of atom और electronic confusion. electronic structure को ये नहीं explain कर पाया, मतलब ऑर्बिट को तो बता दिया था, सब सेल एंड ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके डियर्स, तो these drawbacks are overcome by the Bohr model. Therefore a new model is required to explain the stability of atoms and the electronic configuration also. Okay dears, therefore Bohr's model of the atom is as Niels Bohr in 1930 gave a new concept of the new concept of the structure of atom, which is known as the atomic model of the Bohr. Okay dears, to overcome the objection of the objections raised in the against the Rutherford model, Rutherford model के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे उनको ओवरकम करने के लिए Rutherford मॉडल प्रपोज किया गया 1913 में। ओके, बोर मॉडल ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड रेशियस। जो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उसकी फिक्स्ड रेशियस होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन उसी फिक्स पाथ में घूमता रहेगा, ना तो उस पाथ से आगे वाले पाथ में जाएगा और ना लोअर वाले पाथ में जाएगा। ओके डियर, द पाथ इज नोन एज द ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। द पाथ ऑफ द फिक्स्ड पाथ इज नोन एज द ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। ओके डियर, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिटल। जो डिस्क्रीट ऑर्बिटल हैं, जो फिक्स्ड ऑर्बिटल हैं, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, वो रेडिएट नहीं कर सकता, ना तो रेडिएट कर सकता है ना एब्जॉर्ब कर सकता है, जब तक कि एनर्जी ना दी जाए और ना उससे ली जाए। ओके डियर, जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब नेक्स्ट पाथ में जाएगा, और जब एनर्जी उससे ले ली जाएगी तो वो लोअर पाथ में जाएगा। ओके डियर, बैक होगा। ओके, third possibility is the orbit or cell are represented by KLMN and so on, and as the number 1 2 3 and 4. The 1 2 3 and 4 is known as the principal quantum number or cell number. Okay, cell number. The cells, the different cells at different orbital, different energy levels of atoms are represented as according to the Bohr model. Dear students, see here it is the nucleus. Nucleus is a positively charged. Nucleus has the whole mass of the atoms. It contains neutron and protons. Neutron is neutral, proton is positive. In atom, number of proton equal to number of electron.
ओके डियर्स, देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये एक फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया, ये फोर्थ पाथ हो गया। ओके, फर्स्ट पाथ रिप्रेजेंटेड बाई के और 1, सेकंड इज द एल और 2, थर्ड इज द एम और 3, फोर्थ इज द एन और 4। Okay dear, and so on. The first orbit has the lowest energy, and the energy increases with increase the distance from the distance of the orbit or cell or energy level from the nucleus। जैसे न्यूक्लियस से हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस सेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट है सबसे लेस एनर्जी वाला होगा और फोर्थ वाला हायर एनर्जी वाला होगा। ओके डियर्स, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड में नहीं जा सकता है, सेकंड से थर्ड में नहीं जा सकता है, मतलब किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपने आप ना तो वो किसी अदर ऑर्बिट में ना तो वो जंप कर सकता है अपर पोजीशन में ना लोअर पोजीशन में। ओके डियर, जब तक उसको एनर्जी नहीं दी जाएगी। तो इट इज़ द बोर मॉडल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी एंड बोरबरी प्रिंसिपल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।